بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے الغفران میڈیا میں جو مہمان تشریف فرما ہے مولانا خالد ندوی صاحب، اور یہ الغفران میڈیا سروسز کا پہلا انٹرویو ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ بہتر ہو۔ تو آج ہم ان سے مخاطب ہیں اور ان سے ہم الغفران میڈیا میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کا موقع دیا ہے کہ میں یہاں آیا، اور آپ کی اس میڈیا کے تمام کارکنان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا ایک چینل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور کامیاب کرے۔ آمین۔ مولانا، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے مسابقہ قرآن مجید کے نام سے 5 اضلاع پر مشتمل دربھنگا، سیتامڑھی، مدھوبنی اور سمستی پور کے طلباء کو آپ نے شریک کیا اور مکمل قرآن مجید اور نصف قرآن مجید کے نام سے یہ مسابقہ کروایا۔ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے ہوا؟ حالانکہ اس علاقے میں اس طرح کا مسابقہ ابھی نہیں دیکھنے کو ملا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ قرآن کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے اور قرآن مجید کے حفظ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور مسلم معاشرے میں قرآن کے حفظ کی طرف بچوں کو راغب کرنے کے لیے میرے ذہن میں خاکہ آیا، اور پھر میں نے یہ ذہن بنایا کہ اسے ابھی چھوٹے پیمانے سے شروع کروں۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں 5 اضلاع پر مشتمل مدارس کو مخاطب کیا، اور الحمدللہ اس کا رسپانس اچھا ملا۔ تشریف لائے بچے اور انہوں نے اس مسابقے میں شرکت کی۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس طرح کا مسابقہ آئندہ بھی ہر سال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی یہ مسابقہ اب ہر سال ہوگا، اور اس میں اس کے حدود و ارباں میں توسیع کی جاتی رہے گی۔ انشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، ہم سب کو بھی موقع ملتا رہے گا، سارے مدارس کے طلباء کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اور ان کے اندر شوق پیدا ہوگا اس طرح کا مسابقہ اگر ہر سال ہوتا رہے۔ اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ میٹرک میں پاس ہونے والے بچے اور بچیوں کو جو فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ اسکالرشپ کس طرح کا ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑا آپ معلومات دیں گے تاکہ جو بھی میٹرک میں پڑھنے والے طلباء طالبات ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اسکالرشپ کے مستحق بن سکیں۔ وہ جو طلباء ہائر کلاس میں جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے میٹرک پاس کیا اور اچھے نمبرات سے، ہم انہیں اور 8ویں کلاس کے بچوں تک ایک گروپ ہوتا ہے ہمارا 5 سے 8، دوسرا گروپ ہے 9، 10 اور میٹرک یعنی ہائر اسکول۔ ان میں ان بچوں کو ہم خاص طور سے مسابقہ کے لیے اسکالرشپ کے لیے بلاتے ہیں کہ جن کا ذہن اسلامی تعلیم کو بھی آگے حاصل کرنے کی طرف راغب ہو۔ اسی لیے ہم نے شروع کے جو بچے ہیں یعنی 5th کلاس سے 8th کلاس تک کے بچے، ان کے درمیان ہم کمپٹیشن کرواتے ہیں۔ اسلامیات پر معمول چند سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات میں سے جو اچھے جوابات دیتے ہیں انہیں ہم دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مزید تشجیعی انعامات دیتے ہیں۔ اور جو اوپر کے بچے ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ فرسٹ آئیں، سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو دیا جائے۔ لیکن ابھی بڑے پیمانے پر اس پر کام کرنا ذرا مشکل ہے چونکہ وسائل کی کمی ہے۔ تو اصحاب خیر کی اگر توجہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اس بار ارادہ ہے کہ کم از کم 4-5 اضلاع کو ایک ساتھ مخاطب کیا جائے اور ان کے جو مسلم بچے ہیں ان کو لایا جائے۔ مقصد وہی ہے، ان کے اندر ترغیب دلانا۔ یہ بہت بہتر کام ہوگا۔ اس طرح بھی تو علاقے بھر میں یہ میٹرک میں پاس ہونے والے
तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप का ये काम होता था। अब इन्होंने बताया कि 5-6 अज़ला को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत ही हौसला अफजाई का ये कदम होगा। और आपने ये जो मुसाबका का प्रोग्राम सुरौल के अंदर करवाया, राबिया गर्ल्स स्कूल और दारुत तहफ़ीज़ के ज़ेर एहतमाम, इसमें नए अमीर शरीयत झारखंड यहाँ तशरीफ़ लाए और वो अभी फ़िलहाल में इस सिलसिले में बहुत इख्तलाफ रहा है। तो कुछ आप इस सिलसिले में आप कुछ फरमाएंगे? क्या नज़रिया है आपका? अमीर शरीयत जो एक सूबे के लिए है, क्या उनका होना बेहतर है, होना चाहिए, ताकि वो अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर अपने सूबे भर के लिए काम कर सकें, या वही बेहतर था जो एक साथ 3 सूबे थे? बहुत सारे लोगों का नज़रिया ये रहा कि नहीं, बेहतर है कि एक सूबे के लिए एक अमीर शरीयत हो, ताकि वो अपने सूबे में बड़े पैमाने पर अच्छी नज़र रखें और काम कर सकें। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा आप। बड़ा पेचीदा, बड़ा संगीन सवाल है, सख्त है, लेकिन बहरहाल सवाल है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। मैंने अमीर शरीयत झारखंड को बुलाया और बिहार व उड़ीसा के जो अभी मौजूदा अमीर शरीयत हैं वो तशरीफ़ नहीं लाए। मैंने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की कि इमारत शरिया पटना यानी बिहार से भी आएँ, और मैंने वहाँ के अफराद को से रुजू किया, बुलाया, दावत दी, मगर उन्होंने मुसलसल नज़रअंदाज किया। और अमीर शरीयत झारखंड मौलाना नज़र तौहीद साहब, इनको मैंने जब मुखातब किया और दावत दी तो इन्होंने मेरी दावत पर लब्बैक कहा और कहा इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं ज़रूर शिरकत करूँगा। और यकीनन वो अपने वादे में सच्चे और पक्के रहे। मेरा ख्याल है कि हम अपने प्रोग्राम में उन अफराद को बुलाएं, उन शख्सियतों को बुलाएं जिनके अंदर तकवा हो, परहेज़गारी हो और आवाम के लिए कुछ करने का जज्बा भी हो। सिर्फ कुर्सी लेना, कुर्सी पर बैठ जाना, मैं इसका कायल नहीं हूँ। रही बात दूसरी कि क्या अलग अलग स्टेट में होना चाहिए, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का तकाज़ा यही है कि अलग अलग स्टेट में हो, बल्कि तो मैं इसका कायल हूँ कि हर ज़िले में हो। अमीर शरीयत है भाई, ये कोई बादशाह है, बादशाहत नहीं है, और नहीं कोई ये डेमोक्रेसी है कि एक बादशाह होगा और उसके अंडर में सारे लोग होंगे। अगर अमीर शरीयत हर ज़िला में हो तो आप यकीन जानें कि जो काम हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और उस अमीर शरीयत को, उनकी टीम को गांव के कस्बे कस्बे में, देहात में, छोटे छोटे जो बिल्कुल पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। बहरहाल वाकई में ये सवाल तो बहुत मुख्तलिफ ही रहा है, लेकिन हमने सोचा कि लोग जो तरह तरह के एतराज़ात इस प्रोग्राम के सिलसिले में करेंगे तो हमने सोचा कि आपसे वजाहत हो जाए। चूँकि लोगों का नज़रिया ये था कि मुफ्ती नज़र तौहीद साहब अमीर शरीयत बन गए हैं, लेकिन आपने पहली दफ़ा बिहार में इस्तकबाल किया और हम समझते हैं कि अमीर शरीयत बनने के बाद ये पहला प्रोग्राम उनका होगा जो आपने यहाँ उनको दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ तशरीफ़ लाया। इसी तरह हमने सुना, उनका वीडियो भी देखा, उसमें उन्होंने इसी तरह की बात कही है कि अमीर शरीयत एक होने की वजह से नज़रअंदाज बाज़ इलाक़ों को किया जाता है, दावत देने पर वक्त पर नहीं आ पाते हैं। बहरहाल ये अपनी जगह है सारी बातें। आप इलाक़े में मज़ीद तालीमी तरक्की के लिए और क्या प्लानिंग रखते हैं, क्या इरादा है जो आप तालीमी सिलसिले में और कुछ करना चाहते हैं, वो थोड़ा आप बताएँगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इरादा तो है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ कस्बों में, देहातों में मकातिब कायम किए जाएँ और उसमें अगर मुझसे कुछ बात बन सकती है तो मैं करूँ। हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जो हम सब के सरपरस्त रह चुके, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि गांव-गांव, शहर-शहर में मकतब कायम किए जाए। दीन की बका, ईमान की बका, इस्लाम की बका अगर चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको चाहते हैं कि आप औरों तक भी शेयर करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे मकातिब कायम किए जाएँ। और
मकतबों का जाल फैला दिया जाए। बस मैं इसी पर अमल कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात ये है कि सियासत के सिलसिले में मालूम हुआ कि आपके ख़ानदान के, आपके दादा, आपके वालिद साहब भी सियासत में बहुत दिनों तक रहे, एमएलए वगैरह भी, ज़िला परिषद मुखिया वगैरह रहे। इस सिलसिले में आप कुछ तफसील हमारे नाज़रीन को बताएंगे? जी हाँ, मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह जनाब मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब दारुल उलूम देवबंद से मिशकात तक उन्होंने तालीम हासिल की थी। उसके बाद उनको हुकूमत हिंद ने मुंतखब करके एमएलए बनाया, तो वो सबसे पहले बिस्फी के एमएलए बने, जो उस वक्त बेनी पट्टी पार्ट 2 था बिस्फी के। उसके बाद दोबारा उनका इंतखाब जाले से हुआ। वालिद साहब 16 साल तक मुखिया रहे, उसके बाद ज़िला पार्षद होकर उनका इंतकाल हुआ। हमारी सियासत में एक ही चीज़ है, एक ही फिक्र है, और ये मैं अपने वालिद मोहतरम को भी कहा करता था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर किसी एक पार्टी का ग़ुलाम बन के नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुसलमान उसका इंतखाब करे जो आपको स्पेस दे, आपको अपनी सियासत में जगह दे और आपके लिए जो काम करने का अहल हो। सियासी मैदान में आपका भी कोई इरादा है कि जो इलाके में हालांकि ज़रूरत है, आप लोगों ने उस मैदान को बिल्कुल छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी मैदान में आप काम कर रहे हैं, लेकिन सियासी मैदान में भी ज़रूरत है, तो क्या कुछ आगे इरादा है इस सिलसिले में? जनाब, इस सिलसिले में अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। वक्त और हालात रहे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह उसमें बेदरेग दाखिल हुआ जा सकता है, कूदा जा सकता है। इसलिए कि अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारी इस कौम को, इस मिल्लत को, इस मुल्क को, इस इलाके को, तो उसकी के लिए कुर्बानी देने से मैं नहीं चूकूँगा। जज़ाकल्लाह। आखिर में हम चाहेंगे कि नाज़रीन के लिए कोई ख़ास पैगाम जो आप देना चाहें। मेरी बात ये जहाँ तक पहुँचे, उसमें 2 तबके हैं नाज़रीन में हुआ करते हैं, एक होता है ज़िम्मेदार और एक होता है आवाम। ज़िम्मेदारों से हमारी गुजारिश होगी कि वो अपने अपने इलाके में किसी भी बच्चे को तालीम से महरूम न रखें, वरना क़यामत के दिन उनसे बाज़पुरस होगी। और आवाम से ये अपील है कि वो अपने बच्चों को मकातिब में, मदारिस में, स्कूल में हर हाल में भेजें, चाहे वो भूखे रहें, नंगे रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल और अच्छा मुस्तकबिल बनाने में वो ज़रूर इसका हक़ अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस चैनल के लिए वक्त दिया। आज का ये प्रोग्राम जामिया गुफ़रानिया बसीठा में मुनक़िद हुआ, चूँकि यहाँ के एक तालिब इल्म सोरौल के अंदर होने वाले मुसाबक़े में सेकंड पोजीशन हासिल की और उसने 8,000 रुपये और शील्ड हासिल